Good morning, students. In last lectures, we have discussed some examples of groups. Now today, we are starting from example number 6. Sixth example है show that this set, इस set में जो हमने elements consider किए हैं वो elements a raised to power 0 means 1, a square a cube up to so on, और negative powers में a raised to power -1, -2, -3 up to so on form an infinite abelian group with respect to multiplication where a is any fixed non-zero real number. a आपका कोई भी फिक्स नॉन जीरो रियल नंबर है. हमें क्या शो करना है? ये इनफाइनाइट तो दिख ही रहा है आपको. ये ग्रुप, ये जो है सेट, दिस इज इनफाइनाइट सेट. इसको हमने क्या शो करना है? एबिलियन ग्रुप प्रूव करना है. एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए पहले हम एक ग्रुप प्रूव करेंगे, फिर हम उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे. लेट G be this set. If x, y, z are three elements of G, then x, y, z they are of the form some powers of a. So we have written here x is equal to a raised to power m, y is equal to a raised to power n, z is equal to a raised to power p, where m and p are some integers, means belongs to z. First is the closure property. Closure property हमें show करना है if we consider two elements of G, say x and y, then x into y also belongs to G. Then x into y is equal to a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. Now m and n here are integers, so their sum is also integer, so m plus n belongs to z. If m plus n belongs to z, so a raised to power m plus n belongs to G. So closure property is satisfied. सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी एसोसिएटिविटी. एसोसिएटिविटी में हम थ्री एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं, एक्स, वाई और जेड. शो क्या करना है अब हमें यहाँ? एक्स डॉट वाई डॉट जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई डॉट जेड. मीन्स पहले हमने एक्स वाई को कंबाइन करना है, फिर पहले इसमें हमने वाई जेड को पहले कंबाइन किया और फिर एक्स के साथ. नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड की हमने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी. इन दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी? ए रेज टू पावर एम प्लस एन डॉट ए रेज टू पावर पी. और फिर m प्लस एन में जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पावर्स ऐड होके m प्लस एन प्लस पी. अब इन पावर्स जो ये सम चल रहा है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो m प्लस एन प्लस पी, एंड दिस कैन बी रिटन एज a रेज टू पावर m डॉट a रेज टू पावर n डॉट a रेज टू पावर p, means x dot y dot z, and this result holds for all elements of G. So this associativity property is satisfied. Third is existence of identity. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में आपको एक ऐसा एलिमेंट लेके आना है जिसको हम ई से डिनोट करते हैं कि वो एलिमेंट ई जो है वो जी का होना चाहिए, सच दैट ए इंटू ई इज इक्वल टू ई इंटू ए इज इक्वल टू ए आ चाहिए. तो यहाँ जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वन एलिमेंट है, because 1 into a raised to power m is equal to a raised to power m into 1 is equal to a raised to power m for all m belongs to z. ये पावर जो आपकी चल रही है आप कुछ भी कंसीडर करो, मींस कुछ भी इंटीजर आप लो, ये रिजल्ट हर एलिमेंट के लिए होल्ड करेगा. सो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G. नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में आपको क्या शो करना होता है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमें क्या दिखाना है? इफ वी कंसीडर सम एलिमेंट से a of G, then there exists another element b belongs to G such that a into b is equal to identity is equal to b into a. और जो वो आपका यहाँ जो b एलिमेंट है that is called inverse of a. So for each x belongs to G, there exists a unique element 1 by x belongs to G such that x into 1 by x आपका क्या आ जाएगा? 1, because 1 is the identity element. Means if x is equal to a raised to power m, then 1 by x is equal to 1 by a raised to power m. But if we see 1 by a raised to power m, clearly it belongs to G because 1 by a raised to power m can be written as a raised to power minus m. If m is integer, then minus m is also an integer. So x into 1 by x means a raised to power m into 1 by a raised to power m is equal to 1. So x and 1 by x, these are inverse of each other. Commutative means यहाँ तक ये 4 आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो चुके हैं, मींस G आपका ग्रुप बन चुका है. एबिलियन ग्रुप शो करने के लिए हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे कि x into y is equal to x और y की वैल्यू रखिए a raised to power m into a raised to power n. This is equal to a raised to power m plus n, and this also can be written as a raised to power n plus m, means this is which is equal to y into x, and this result holds for all elements of G. So commutative property is satisfied. So the given set G, जो infinite set आपको given था, this is a group with respect to multiplication. Next example, show that set of integers z is an abelian group with respect to operation star, where operation star is defined as a star b is equal to a plus b plus
1 फॉर ए बी बिलोंग्स टू जेड। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ जो स्टार ये ऑपरेशन, दिस इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, ये ऑपरेशन आपका कुछ भी हो सकता है। यहाँ ऑपरेशन क्या डिफाइन किया है, जो भी दो एलिमेंट्स आपने कंसिडर करने हैं उनका सम प्लस उसमें आपने 1 ऐड करना है। अब आपने क्या चेक करना है, शो करना है कि जो ग्रुप है वो आपका ग्रुप कैसा है, एबिलियन ग्रुप। कौन सा, सेट ऑफ इंटीजर्स। इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में भी आपका एबिलियन ग्रुप बन रहा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस वन। अब ए और बी दीज आर टू इंटीजर्स, अगर दो इंटीजर्स को ऐड करो और उसमें वन फिर ऐड कर दो तो वो भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा। इसका मतलब ए स्टार बी भी आपका जेड का एलिमेंट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाइड होगी। सेकंड प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में आपको जो भी आपको सेट गिवन है उसके 3 एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं। हियर वी कंसीडर ए बी एंड सी बिलोंग्स टू जेड, देन वी हैव टू प्रूव ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। मींस पहले हमने फर्स्ट दो एलिमेंट को कंबाइन किया फिर थर्ड के साथ, और इसमें हमने लास्ट के दो को कंबाइन किया और फिर फर्स्ट के साथ कंबाइन करना है। तो a star b by using the binary operation, this is equal to a plus b plus 1 star c. Now this is first element and c is second element, so this first element plus second element c plus 1, this is by binary operation जो हमने define किया हुआ है। Then we get a plus b plus c plus 2. Now similarly we solve right hand side a star b star c, a star b star c हम पहले solve कर रहे हैं, तो वैल्यू आएगी b plus c plus 1. अब a is the first element and b plus c plus 1 this is the second element, तो a first element plus second element plus 1, then again we get a plus b plus c plus 2. So associativity property is also satisfied. Third is existence of identity. Identity के लिए आपने फिर वही कंसिडर करना है, there exists an element e belongs to z, यहाँ जो एलिमेंट सेट है वो आपका z है, such that a into e into मीन्स यहाँ जो भी आपको स्टार ऑपरेशन दे रखा है, a star a is equal to e star a is equal to a आपका आ जाना चाहिए। If e is identity element, अगर e identity element है, then a star e is equal to a star a a star e क्या बनेगा, a plus e plus 1 this is equal to a, तो यहाँ से e की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, this is equal to -1, thus a star e is equal to a into -1. नाउ दिस इज इक्वल टू, इस पे बाइनरी लगाओ, ये फर्स्ट एलिमेंट ये सेकंड एलिमेंट आपका, तो a -1 सेकंड एलिमेंट प्लस 1 दिस इज इक्वल टू a, मींस e इक्वल टू -1 दिस इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो वी कैन, या हम प्रूव कर रहे हैं e स्टार a इज इक्वल टू e की वैल्यू स्टार a दिस इज इक्वल टू, अगेन बाइनरी ऑपरेशन यूज करें, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस 1 दिस इज अगेन इक्वल टू a, सो -1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ z. Third is existence of inverse. Let A belongs to Z. Inverse में हमें क्या दिखाना है? There exists an element B belongs to Z such that A into B is equal to A, means A star B is equal to identity. If B is inverse of A, then A star B is equal to E. If this result holds, then B is called inverse of A. Then A star B is equal to E and E is equal to -1. Then we get A star B means A plus B plus 1. This is equal to -1. Then we get A plus B is equal to -2. Means B is equal to -A -2. Thus, for each A belongs to Z, there exists an element B. अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये एलिमेंट हमारा Z से बिलोंग कर रहा है. This also belongs to Z because A belongs to Z, so minus A is also an integer belongs to Z. -2, this is also an integer, means this A minus A minus 2 also belongs to Z. So A star B is equal to, यहाँ आप चेक करके फिर देख सकते हो, A star B की आप यहाँ वैल्यू रखो, बाइनरी ऑपरेशन यूज करो, देन अगेन वी गेट द आइडेंटिटी एलिमेंट मींस -1, मींस ये हमने लेफ्ट हैंड साइड मींस वन साइडेड प्रूव किया। A star B सिमिलरली यू कैन राइट B star A, दिस इज आल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी, सो B is called inverse of A. नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फोर हमने क्या लेना है, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट कंसिडर करें Z के A और B, तो A स्टार B आपका क्या आ जाना चाहिए, B स्टार A आ जाना चाहिए। तो A स्टार B is equal to A plus B plus 1, means this also can be written as B plus A plus 1, means this is equal to B star A. So commutative property is also satisfied. So Z with respect to this operation star is an abelian group. Next example है, show that set of all non-zero rational numbers form an abelian group with respect to the binary operation star defined by A star B is equal to A multiplied by B divided by 2. यहाँ जो हमने सेट कंसिडर किया है वो सेट किसका है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स का हमने कंसिडर किया है।
और हमें क्या प्रूव करना है कि ये हमारा एक एबिलियन ग्रुप बन रहा है। तो लेट क्यू नोर, क्यू नोर हमने नोटेशन, वैसे क्यू हम नोटेशन यूज करते हैं रैशनल नंबर्स के लिए, क्यू नोर हमने जो नोटेशन यूज की है वो नॉन जीरो रैशनल्स के लिए यूज की है। मींस क्यू नोर कैन बी रिटन एज क्यू माइनस जीरो, जीरो को आपने करनी ब्रेसेस के अंदर लिखना है। मींस क्यू नोट जो सेट है वो सेट क्या है कि क्यू में से, मींस रैशनल्स के सेट में से अगर आप जीरो को हटा देते हो तो उसको हमने क्यू नोट से यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब हमें चेक करनी है फिर वही प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर आप कोई दो एलिमेंट कंसिडर करो क्यू नोट के तो ए स्टार बी भी क्यू नोट का होना चाहिए। ए स्टार बी आपका ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 2, यानी दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन रैशनल, और रैशनल से डिवाइड करोगे तो अगेन रैशनल, और नंबर कैसा आएगा, तो ये सारे नॉन जीरो है तो नंबर आपका नॉन जीरो ही आएगा ऑफ कोर्स। तो ए स्टार बी बिलोंग्स टू क्यू नोट, तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई। सेकंड है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी यू कैन चेक बाय मल्टीप्लाइंग। थर्ड प्रॉपर्टी है आपकी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में फिर आपने एक आइडेंटिटी एलिमेंट लेना है कि सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए आ जाए। तो यहाँ आप, इसने तो यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन अब आपको तो डायरेक्ट तो नहीं पता चलेगा कि वो एलिमेंट क्या है, तो आप उस एलिमेंट को ई कंसिडर करो। लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, देन वी कैन राइट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए स्टार ई क्या आ जाए, अगर ए आ जाए तो ई आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो 2 की जगह आप ई लिखोगे तो आपका क्या आएगा, ए इंटू ई डिवाइडेड बाई 2, then you get a into e divided by 2 is equal to a. a into e divided by 2 is equal to a, और यहाँ से आपने e की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और वो e की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सो यहाँ तो a into e लिखा, ऐसे ही आप कैलकुलेट कर सकते हो, e into मीन्स e स्टार a निकाल सकते हो, वो वैल्यू भी आपकी 2 आएगी। सो 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका इनवर्स है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब कोई भी एलिमेंट अगर आप a कंसीडर करते हो तो हमने ले लिया लेट b बी द इनवर्स ऑफ a। इफ b इज इनवर्स ऑफ a देन बाय डेफिनेशन क्या हो जाना चाहिए, a स्टार b इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी क्या है यहाँ आपकी 2 है। तो बाय डेफिनेशन a स्टार b इज इक्वल टू a इंटू बी डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2। सो वी गेट यहाँ से क्या आ जाएगा, a इंटू बी इज इक्वल टू 4, सो b इज इक्वल टू 4 बाय a। अब 4 आपका रैशनल, a भी आपका रैशनल है, तो 4 by a is again a rational number, so b is a rational number, so b belongs to q नोट, means b is inverse of a। यहाँ जो भी इसने रिजल्ट किए हुए हैं, ये रिजल्ट इसने वन साइड प्रूव किया हुआ है। एक्चुअली में रिजल्ट वन साइड होल्ड आपका सिर्फ हम करके दिखा दें वो सफिशिएंट है अगर वो ग्रुप आपका कम्यूटेटिव ग्रुप है, क्योंकि कम्यूटेटिव में रिजल्ट बोथ साइडेड आपका होल्ड करता है, बिकॉज a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a। बेटर रहेगा कि अगर आप यहाँ से दूसरी साइड से भी प्रूव करके दिखाओ कि b स्टार a जो है दिस इज इक्वल टू अगेन आइडेंटिटी, सो b इज आल्सो इक्वल टू a 4 by a फ्रॉम राइट हैंड साइड, हेंस इनवर्स एग्जिस्ट। नेक्स्ट जो है आप कम्यूटेटिव हम प्रूव कर रहे हैं, a स्टार b कैन बी रिटन एज a into b डिवाइडेड by 2 कैन बी रिटन एज b into a by 2, दिस इज इक्वल टू b स्टार a। दिस रिजल्ट होल्ड्स फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ q नोट, so commutative property is satisfied. Okay students, next example है prove that set q nor of all non-zero rational numbers form an abelian group under operation of multiplication of rationals। यहाँ तो ऊपर जो ऑपरेशन था वो स्टार ऑपरेशन था कि एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना था, यहाँ सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स ही लेना है, और आपको यहाँ जो ऑपरेशन लेना है वो ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। यू कैन रीड दिस एग्जाम्पल, इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। आपको ये एग्जाम्पल हमारे हो गए यहाँ 9 तक एग्जाम्पल्स हो गए, या आप लोगों ने 9 तक एग्जाम्पल्स करने हैं, और 9 तक एग्जाम्पल्स करने के बाद आपने फर्स्ट एक्सरसाइज ट्राई करनी है, और फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 11 तक। 11 तक आप लोग करोगे। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी कैन डू इन नेक्स्ट क्लास।